کہ اسی مسیح خداوند نے قربانی دی اس حقیقت نو سمجھ سکیے جان سکیے تاکہ اسی اس گل نو جان سکیے کہ نجات سوکھی نہیں لبدی نجات سوکھی نہیں لبدی نجات سوکھی نہیں لبدی بہت اوکھی ہے جے مینوں یا تانوں اس سارے عمل چوں گزرنا پوے تے کی گزر سکتے ہیں نہیں لیکن مسیح خداوند نے بھائیو گڈ ایوننگ، امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی کا کیا سین ہے؟ ابھی کا یہ سین ہے کہ آپ کا بھائی ہو چکا ہے تیار، اور جو ایونٹ جس طرح ہوں گے وہ آپ کے ساتھ بلاگ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ کبھی میں نے شام ٹائم بلاگ شروع کیا نہیں ہے، یہ فرسٹ میرا بلاگ ہوگا جو میں شام میں شوٹ کر رہا ہوں۔ اور کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ آج ہے ایک بہت اچھا ایونٹ، جمعرات کے ایونٹ ہے، آخری فسا کی عبادت ہے، جو کہ میں آپ کے ساتھ گائز آج شیئر کروں گا۔ ابھی تیار ہوا ہے آپ کا بھائی، نہا لیا ہے، کپڑے شپڑے ڈال لیے، پرفیوم لگا لیا ہے۔ تو یہ آپ کو ویو بھی دیتا ہوں شام کا، اور اپنی عبادت کا ٹائم جو ہماری چرچ کی عبادت کا ٹائم ہے 8 سے 10 کا ہے۔ تو ابھی کزن کو بھی دیکھوں گا، ابھی ٹائم پڑا ہے کیونکہ ابھی 7 بجے ہیں، 1 گھنٹہ پورا ہے۔ 1 گھنٹے میں یہ ہے کہ میں اپنے کزنوں کو دیکھوں گا، وہ بھی تیار شیار ہو گیا ہے تو ان کو بھی اپنے ساتھ لوں گا، اور چرچ جائیں گے۔ پھر چرچ میں جو مطلب آخری عبادت ہے، مطلب آخری فسا کی عبادت ہے نا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو ابھی کا جو مومنٹ ہے بڑا پیارا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے بھائی، بڑا ہی اچھا لگ رہا ہے۔ آپ کو موسم دکھاتا ہوں، موسم کی کچھ ایسا حال ہے، کیسے لگ رہا ہے بس بارش آنے والی ہے لیکن آ نہیں رہی۔ چیک دس گائز، کتنا پیارا موسم لگ رہا ہے، یہ دیکھیں دور دور لائٹیں بھی جل رہی ہیں۔ تو تقریباً شام کا ہی ٹائم ہو گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں سورج ڈوب گیا ہے، اور اس ٹائم یہ ویو ہے کچھ۔ اور میں اس ٹائم چھت پہ کھڑا ہوں، اور میں جا رہا ہوں سیڑھیوں سے بھی نیچے، تو مربے بھی جاؤں گا، دیکھوں گا کزنوں ان کو تیار ہو گئے ہیں، ان کو ساتھ لیتے ہیں، چرچ جاتے ہیں۔ جو بھی معاملات ہیں آپ کو اسی بلاگ میں دیکھنے کو ملیں گے۔ ڈسکس کیا جاتا ہے، اور اس رات میں جب وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو پسینہ ہے وہ خون کی بوندیں بن کر اس پتھر پر، اس جگہ پر جو ہے وہ ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایسی حالت تب ہوتی ہے جب انسان بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، جب انسان بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے، اور غم جو ہے، پریشانی جو ہے اس کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے اور برداشت سے باہر ہوتی ہے، تب جو ہے انسان ایسی حالت میں آتا ہے، اور اس کا خون جو ہے، جو پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندیں بن کر ٹپکنا شروع ہو جاتا ہے۔ مسیح خداوند جو کہ آنے والے وقت کے بارے میں بھی علم رکھتے تھے، ان کے پاس یہ سارے بھید موجود تھے، اور مسیح خداوند نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان دینے کا اور لینے کا بھی اختیار ہے۔ یعنی کہ مسیح خداوند نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنی جان دی، مرضی سے اپنے آپ کو ان سپاہیوں کے، ان قیادوں کے اور حکومت والوں کے، یہودیوں کے حوالے کیا۔ یعنی مسیح چاہتے، مسیح یسوع چاہتے تو وہ یہ سب کچھ روک بھی سکتے تھے، لیکن مسیح خداوند نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ہم سب کے گناہوں کی قربانی کے لیے پیش کیا۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب ذرا ہم نکالیں گے پرانے عہد نامہ میں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 53واں باب یعنی 53 باب نمبر 53۔ میں کوشش کروں گا نہایت سادگی سے ان سب باتوں کو بڑی دیانتداری سے آپ سب تک پہنچاؤں۔ 5ویں آیت تلاوت کریں گے، کوئی بھی آپ میں سے جلدی سے 5ویں آیت تلاوت کریں۔ حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کی اس بات سے غائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ بائبل مقدس کی اس آیت پر مبنی آج کی رات کی نسبت سے ہم تعلیم حاصل کریں گے، یعنی اس پر سیاست ہوئی۔ سیاست کس طرح سے ہوئی، ان باتوں کو ہم آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جب مسیح خداوند کو یہودا اسکریوتی جو ہے وہ پکڑواتا ہے، اور گتسمنی باغ میں ان تمام لوگوں کے ساتھ جو اسے پکڑنے والے تھے، پیادوں کے ساتھ، سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے، تو اس جگہ پر ایک واقعہ ہوتا ہے کہ پترس جو ہے وہ اپنی تلوار نکال کر ایک سپاہی کا کان جو ہے وہ اتار دیتا ہے، لیکن مسیح خداوند بڑی خوبصورتی سے اسے اس بات کا سبق دیتے ہیں کہ جو تلوار سے قتل کرتا ہے وہ تلوار سے قتل کیا جائے گا۔ مسیح خداوند اس کے کان کو معجزاتی طور پر واپس جوڑ دیتے ہیں،
अपना हाथ बढ़ाकर उसे शिफा देते हैं और वो प्यादा जो है, वो सिपाही जो है, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो उसी खुदावन को जब वो ढूंढते हुए गतसमनी बाग में आते हैं तो उन्होंने आकर नहीं पूछा कि यीशु मसीह किथे है। मसीह खुदावन ने खुद फरमाया, खुद पूछा कि साहिबो तुम किसे ढूंढते हो। ए गालों जरा समझो जी, मसीह खुदावन आप उन्होंने कह रहे हैं तो उन्होंने सिपाहियों के अगे जाकर उन्होंने सामने जाके कह रहे हैं, मसीह खुदावन ने फरमाया कि तुसी किन्नू लभण दे हो, तुसी किन्नू ढूंढते हो। तो फिर जो है यहूदा इस्करियोती आकर मसीह खुदावन को चुनता है और इससे ये बात पक्की हो जाती है कि वो मसीह खुदावन को पकड़वाने के लिए आया है। और भी बहुत सारी इसकी निस्बत से बातें हैं, लेकिन मैं बहुत इसको लंबा नहीं करूंगा। इसके बाद मसीह खुदावन को 6 मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया जाता है। कितनी जगहों पर? 6। पकड़ा कहां से है? गतसमनी बाग से। और उसके बाद मसीह खुदावन को सलीब देने के लिए, मरवा डालने के लिए, कत्ल कर देने के लिए 6 मुख्तलिफ जगहों पर ले जाया जाता है। पहली जो जगह है, यानी पहली जो 3 पेशियां हैं, इन्हों तुसी इंज कह सकते हो कि मसीह खुदावन नूं 6 जगह ते पेश किया जाता है और उन्हां 6वां जगह ते ही मसीह खुदावन नूं कसूरवार ते गुनहगार ठहराने की कोशिश की जाती है। जो ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਤਾਲੁਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਸਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰੀ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੋਮੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਔਰ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੀ? कोई मुश्किल बातें हैं, बड़ा ज़हन आपने हाजिर करके आज सुनना है, फिर आप समझ सकेंगे कि साढ़े उसी खुदावंद की सियासत किमें हुई, किस तरह उस पर सियासत की गई। जो नोट कर सकते हैं वो इन हवालाजात को नोट भी कर लें, आपके इल्म में ये बातें इजाफा करें। मसीह खुदावंद को जब गतसमनी बाग से पकड़ा गया तो फिर सबसे पहले मसीह खुदावंद को एक यहूदी रिटायर्ड जो शख्स था उसके सामने पेश किया गया, यानी हन्ना के सामने मसीह खुदावंद को पेश किया गया। और हन्ना जो है मसीह खुदावंद को तकरीबन 30 ईस्वी में मसीह खुदावंद को पेश किया जा रहा है, और जो हन्ना है जिसके सामने पेश किया जा रहा है वो शख्स 15 ईस्वी में अपने काम से रिटायर्ड हो चुका था। तो ये बात जो है असूली तौर पर गलत थी कि किसी रिटायर्ड बंदे के सामने मसीह खुदावंद को पेश किया जा रहा है। कि कोई रिटायर्ड जज किसी मुजरिम दा, किसी मुलजिम दा फैसला कर सकता है? नहीं। इस बात को समझ लें आपने। मसीह खुदावंद के पेश किए जाने से 15 साल पहले वो शख्स रिटायर्ड हो चुका था। ये हन्ना जो है, ये जो मंडी लगी थी 2 दिन, उनका उसका एक बहुत बड़ा ठेकेदार था और सरदार काहिन काइफा का ये सुसर भी था। इसके लिए हवाला आप देखना चाहें तो यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान उसका 18वां बाब 12 से 24 आयत का इरशाद निकालिए। 18वां बाब 12वीं आयत से 24वीं आयत तक का हवाला। और ये वक्त भी आपने जहन में रखना है कि किस वक्त मसीह खुदावंद को कहां पर ले जाया जा रहा है। आज बहुत हम बाइबल मुकद्दस में उन बातों को सीखेंगे जिनको शायद पहले इस दौर से हमने बयान नहीं किया या हमने नहीं सीखा है। तकरीबन 1 बजे के करीब, रात 1 बजे के करीब मसीह खुदावंद को गतसमनी बाग से पकड़ा गया और उसके बाद मसीह खुदावंद को हन्ना में पेश किया गया। यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजीली बयान 18वां बाब 12 से 24 आयत मेहरबानी से कोई तिलावत करें। और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध दिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए कि ये गुरत के सरदार काहिन काइफा का सुसर था। और ये वही काइफा था जिसने यहूदियों को सलाह दी कि उम्मत के वास्ते एक आदमी का मरना बेहतर है। पहले भी पहले भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ पहले भी मसीह खुदावंद के बारे गलबात हो चुकी सी और हन्ना ने मशवरा दिता सी कि अगर ये खराबी पैदा कर रहा है, हैकल के कामां च खराबी पैदा कर रहा है,
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮਰਨਾ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਮਰ ਜਾਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਬਚ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਹੰਨਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਬਾਦਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ इबादत किसी के घर च नहीं हो सकती। आगे पढ़ो जरा, आप मेहरबानी फरमाकर 19वीं आयत से पढ़ना शुरू करें। फिर सरदार कहन ने यीशु से उसके शागिर्दों और उसकी तालीम की बाबत पूछा। यीशु ने उसे जवाब दिया कि मैंने दुनिया से अनोनिया बातें की हैं। मैंने हमेशा इबादत खाने और हैकल में जहाँ सब यहूदी जमा होते हैं तालीम दी और पोशीदा कुछ नहीं कहा। तू मुझसे क्या पूछता है? सुनने वालों से पूछ के मैंने उनसे क्या कहा। देख, उनको मालूम है कि मैंने क्या क्या कहा। जब उसने ये कहा तो प्यादों में से एक शख्स ने जो पास खड़ा था यीशु के तमाचा मारकर कहा, तू सरदार कहन को ऐसा जवाब देता है? यीशु ने उसे जवाब दिया कि अगर मैंने बुरा कहा तो इस बुराई पर गवाही दे और अगर अच्छा कहा तो तू मुझे क्यों मारता है? बस हन्ना ने उसे बांधा हुआ सरदार कहन कायफा के पास भेज दिया। अब जरा गौर कीजिए कि इस पेशी में जब हन्ना के सामने मसीह खुदावन को पेश किया जाता है तो हन्ना जो है मसीह खुदावन से पूछ रहा है, तालीम के बारे में पूछ रहा है कि तू केड़ी तालीम देता फिरने लोगों को। बात समझ रहे हैं? यहूदी लोगों को जब मसीह खुदावन तालीम दे रहे थे, हैकल में तालीम दे रहे थे, तो इस बात से उन्हें बड़ी चिढ़ थी कि पुराने अहदनामा में जो बातें हैं उनको मसीह खुदावन अपनी तरफ इशारा करके बयान कर रहे हैं। तो मसीह खुदावन ने ये कहा कि इन सब बातों को जो मुझसे तू पूछ रहा है, मैं ते सारा कुछ ऐलानिया कीता है, लोगों के सामने कीता है, तो तू मैनू क्यों पूछना है? तू इन्हां नूं पूछ के किस तरह तालीम देता है? कोई भी चीज में वो सीधा नहीं रखी। इन्हीं गल करदियां इन्हां जवाब हन्ना नूं देंदियां होया मसीह खुदावन दे एक सिपाही जेड़ा उठ के की करदा है, तमाचा मार देता है, थप्पड़ मार देता है। हालांकि ये अदालत के असूल के खिलाफ था कि कोई शख्स भी जो ओहदेदारान है उसके हुक्म के बगैर तमाचा या थप्पड़ नहीं मार सकता था। ये भी एक ज्यादती उन्होंने मसीह खुदावन के साथ की थी। अब इसके बाद लिखा है कि बस हन्ना मसीह खुदावन को ले जाया गया, तब वक्त जो है वो 3 बजे से सुबह 5 बजे के दरमियान था। 3 बजे से 5 बजे के दरमियान का ये वक्त है और उस जगह पर झूठे गवाह जो है वो मसीह खुदावन के खिलाफ पेश किए गए और मसीह खुदावन पर उस जगह पर ये इल्जाम लगाया गया कि इसने कहा है कि मैं हैकल को 3 दिन में 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। और ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ गुनाह और बहुत बड़ा कुफर सी, क्योंकि हैकल बनाने के लिए यहूदी जो है आज भी बड़ी तगोदो कर रहे हैं और उस वक्त में भी बड़ी तगोदो कर रहे थे। इसलिए वो समझते थे कि इसने हमारे खुदा के घर के बारे में कुफर बका है, इसलिए उन्होंने उस पर इल्जाम तराशी करना शुरू कर दी। और कायफा ने मसीह खुदावन से पूछा कि क्या तू मसीह है? तो मसीह खुदावन ने कहा कि तू खुद कहता है, तू आप ही कहता है। और मसीह खुदावन ने यह भी कहा कि मैं हूं, और असी सीखा है कि मैं हूं का मतलब की है। यहोवा पाक खुदा ने क्रूस की किताब दे विच अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल कीता है। जदों मूसा नूं कौम बनी इसराइल नूं छुड़ाउण वास्ते भेजिया ते उदों खुदा ने कहा कि उन्हां नूं जाके कहीं मैं जो हूं सो मैं हूं। जब मसीह खुदावन ने कहा कि जब कायफा ने कहा कि क्या तू मसीह है, तो मसीह खुदावन ने कहा कि मैं हूं, ते फिर उन्हां नूं पक्की गल हो गई। उन्हां कहा लो जी ये कुफर वक रहा है, ये ते अपने आप नूं खुदा दे नाम दे नाल बुला रहा है, ये ते अपने आप नूं कह रहे कि मैं खुदा हां। बात समझ आ रही है? अब वो बातों में से मसीह खुदावन को पकड़ना शुरू कर रहे हैं। मसीह खुदावन की बातों को पकड़कर वो उसे कसूरवार, उसे गुनहगार ठहराना चाह रहे हैं। और मसीह खुदावन ने जब ये कहा कि मैं हूं, तो उन्होंने क्या लिए थे कत्ल दे लायक होण ते गवाहां दी हाजत ही कोनी। सरदार कायद ने अपने कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ के क्या होण ते गवाहां दी हाजत कोनी, इनू कत्ल कीता जाए। अब 6 पेशियां हैं, लेकिन दूसरी पेशी में ही उसे कत्ल के लायक करार दे दिया गया। बात जरा समझिएगा, सियासत हो रही है, क्योंकि
यशायाह नबी के सहीफे उसके 53वें बाब में हमने पढ़ा है कि उस पर हमारे लिए क्या हुई, सियासत हुई। सियासत हो रही है उसी खुदावंद दे खिलाफ, उन फसान ली, उन गुनहगार और कसूरवार ठहराने वास्ते। अब जब उसे जो है वो सरदार काहिर अपने कपड़े फाड़ता है और उसे कत्ल के लायक करार दे देता है, तो ऐसे होता है कि वो फिर सदर अदालत के सामने जो है वो मुस्लिम खुदावंद को पेश कर देता है। कौन सी अदालत के सामने? सदर। अभी कौन सी पेशी है? दूसरी, तीसरी। पहली पेशी अल्लाह के सामने, दूसरी पेशी कायफा के सामने और तीसरी पेशी सदर अदालत। इसको सदर अदालत नहीं पढ़ना, सदर अदालत के सामने। मेरे साथ हमारा निकालिए लूका रसूल की बात, लूका तबीब की बात पर तुम्हारे खुदा यीशु मसीह का इजली बयान 22वां बाब 66वीं आयत से आयत नंबर 71 तक। मेहरबानी से बच्चों को जरा कंट्रोल करें, बहुत खास बातें सीख रहे हैं। थोड़ी एफर्ट करया करो, नाम सुन दिया है ना, कोशिश करया करो कि बच्चे जरा कंट्रोल करो। 22 बाब 66वीं आयत से 71वीं आयत तक। एक बच्चे की वजह से या 2-4 बच्चों की वजह से पूरा चर्च डिस्टर्ब होता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जरा ख्याल किया करें। मेहरबानी से कोई भी तिलावत कर दे। जब ये होगा तो सरदार काहिर और फकीर यानी कौम के बुजुर्गों की मजलिस जमा होगी। अब ये जो है कायफा के बाद की पेशी है, यानी कि उन्हें अपने कपड़े फाड़ ले और उन कत्ल दे लायक करार देता। और तीसरी जगह जो भेजा जा रहा है सदर अदालत के सामने, इनू अंग्रेजी च सैनहेड्रिन भी किया जाता है। और ये काफी ज्यादा अराकीन होंदे सन और काफी ज्यादा अराकीन जड़े ने मिल के रुकन मिल के कम से कम 66 रुकन होंदे सन और वो मिल के जड़ा है कोई फैसला करते सन। यानी 66 लोगों के सामने मसीह खुदावंद को पेश कर दिया गया और बहुत सारे मिलके अब इस बात का फैसला करेंगे कि कत्ल के लायक है या नहीं है। जी और उन्होंने उसे अपनी सदर अदालत में ले जाकर कहा, अगर तू मसीह है तो हमसे कह दे। उसने उनसे कहा, अगर मैं तुमसे कहूँ तो यकीन ना करोगे और अगर पूछूं तो जवाब ना दोगे। लेकिन अब से इब्ने आदम कादिर मुझसे खुदा की दाहिनी तरफ बैठा रहेगा। इस पर उन सब ने कहा, बस क्या तू खुदा का बेटा है? उसने उनसे कहा, तुम खुद कहते हो, लेकिन मैं हूँ। उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या हाजत रही, क्योंकि हमने खुद उसी के मुंह से सुन लिया। अब तो बात वो भी वहाँ पर भी यही बात थी, यहाँ पर भी ये बात है और उसी खुदावंद को ये कह रहे हैं कि हुण तानू गवाही की जरूरत नहीं है। यानी कि तू अपने मुंह तो कबूल कर लिया तो कुफर बात। और जी बढ़ी आगे। फिर उनकी सारी जमात उठकर उसे पिलातुस के पास ले गई और उन्होंने उस पर इल्जाम लगाना शुरू किया कि इसे हमने अपनी कौम को बहलाते और कैसर को करार देने से मना करते और अपने आप को मसीही बादशाह कहते पाए। अब ये चौथी पेशी है। 3 पेशियों में कोई बात साबित नहीं हुई। उन्होंने अपने दिल में अपने जहन से ही मसीह खुदावंद को कुफर बकने वाला साबित किया, लेकिन चौथी पेशी में अब वो जाकर अपना बयान बदल रहे हैं। 3 पेशियों में वो मजहबी तौर पर मसीह खुदावंद को जो है वो इस तरह से मसीह खुदावंद ने की क्या सी कि जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है तो मसीह खुदावंद ने क्या कि कैसर को ना दो, नहीं कहा। मसीह खुदावंद ने नहीं कहा कि कैसर को टैक्स ना दो। टैक्स की बात हो रही है, जजिया टैक्स। मसीह खुदावंद ने ये बात नहीं की कि टैक्स अदा ना करो, बल्कि मसीह खुदावंद ने ये कहा था कि जो कैसर का है कैसर को और जो खुदा का है खुदा को दो। लेकिन मसीह खुदावंद पर पिलातुस के सामने, हुकूमत के सामने, जिवें कि मिन्नू या किसी और शख्स को मरियम नवाज के सामने, शहबाज शरीफ के सामने पेश कर दिया जाए तो उन्होंने जाके क्या जाए जी आ फलाना बंदा कहता तुहानू टैक्स ना दियो या फलाना बंदा ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ सानू भड़कांदा है। बात समझ आ रही है? तो की सिनेरियो होएगा, क्या सिनेरियो होगा तब? कितना मुश्किल वक्त होगा कि उस जगह से, उस सारे इलाके से, उन फौजियों से, उन प्यादों से निकलकर बाहर जाया जाए। तो मसीह खुदावंद नूं इसी तरह पिलातुस के सामने पेश किया गया और कहा गया कि साडी कौम नूं बहकांदा है ते तुहानू टैक्स देण तों भी मना करदा है।
یہ الزام چوتھی پیشی میں مسیح خداوند پر لگایا گیا. اگر آپ اس کے لیے حوالہ دیکھنا چاہتے ہیں تو یوحنا رسول کی معرفت انجیلی بیان اس کا 18واں باب 28ویں آیت سے 38ویں آیت تک کا حوالہ اس بارے میں ہمیں بتاتا ہے. اور ہم ٹائم کی ہو چکا ہے 6 بجے تو لے کے 7 بجے کے درمیان ٹائم ہے. صبح 1 بجے تو شروع ہے, 1 تو 3, 3 تو 5, 5 تو 6, 6 تو 7 بجے وقت کے درمیان جڑا ہے مسیح خداوند نو چوتھی پیشی جڑی اودی کیتی جا رہی ہے, چوتھی جگہ تے پیش کیتا جا رہا ہے پلاطس کے سامنے. ایک مجرم نو, ایک ملزم نو جتنی دیر تک وہ الزام نہیں الزام ثابت نہیں ہو جاتا انہی دیر تک وہ حق ہوندا ہے کہ وہ اپنے آپ نو خاموش رکھے. یعنی اودے کوئی اختیار ہوندا ہے, حق ہوندا ہے کہ وہ خاموش رہے. اگر کوئی بندے تو سوال کیتا جانا ہے کہ وہ کی کرے, خاموش رہے. ہیرودیس جڑا کہ مسیح خداوند دے معجزات نو ویکھن دا کی سی مستحق سی. ذرا گل تے غور کرنا ہے. اگر مسیح خداوند چاہتا کہ میں بچ جاؤں, اگر مسیح خداوند دی یہ کوشش ہوندی کہ میں انہاں سارے معاملات چوں سارے جنجال پورے چوں نکل جاواں تے مینوں نہ کچھ بھی کیتا جائے تے مسیح خداوند ایک معجزہ تے کر دیندے تے کی ہونا سی. مسیح خداوند اگر اوتھے ہیرودیس کے سامنے ایک معجزہ کر دیندے تے کی ہونا سی؟ ہیرودیس نے بلے بلے کرا دینی سی تے کی ہونا سی؟ مسیح خداوند نے باعزت بری ہو جانا سی. لیکن مسیح خداوند نے کوئی بھی معجزہ کرنے کے بجائے بلکہ مسیح خداوند نے کچھ کیا ہی نہیں. مسیح خداوند خاموش رہے نے. اس پنجویں پیشی دے مسیح خداوند کی رہے نے, خاموش رہے نے. ہیرودیس پوچھتا رہا ہے لیکن مسیح خداوند خاموش رہے, اور خاموش رہنے کی وجہ تو ہیرودیس نے اپنا چوگا لایا اور مسیح خداوند کو آیا اور انہوں پٹوا کے کی کیتا ہے نے کدے کول بھیج دیتا ہے. پھر دوبارہ پلاطس دے کول واپس بھیج دیتا ہے. آخری پیشی سے پلاطس دے کول واپس جانا. یوحنا رسول دی معرفت انجیلی بیان 19واں باب پہلیاں 16 آیات اسی تلاوت کریں. دیکھ رہے ہو کہ ایک جگہ تے سارے واقعات درج نے کی ترتیب نہ ایک جگہ تے درج نے سارے واقعات نہیں. ادھر غور کرنا پیندا ہے, ادھر پڑھنا پیندا ہے, سیکھنا پیندا ہے تاکہ اسی مختلف واقعات نو جوڑ کے اس رات دی کہانی نو سمجھ سکیے کہ اس رات مسیح خداوند نال کی بیتیا. کدے واسطے؟ میرے تے تہاڈے واسطے. جی پلیز حوالہ ذرا تلاوت کرو. اس پر پلاطس نے یسوع کو لے کر کوڑے لگوائے اور سپاہیوں نے کانٹوں کا تاج بنا کر اس کے سر پر رکھا اور اسے ارغوانی پوشاک پہنائی اور اس کے پاس آ کر کہنے لگے, اے یہودیوں کے بادشاہ عذاب, اور اس کے تماچے بھی مارے. پلاطس نے پھر باہر جا کر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے پاس باہر لے آتا ہوں تاکہ تم جانو کہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا. پلاطس پھر کہہ رہا ہے کہ مینوں تے کوئی جرم نظر ہی نہیں آندا, میں انہوں کس طرح سزا دا. لیکن وہ اور بھی چلا کر وہ کیا کہنے لگے کہ اسے سلیب دو, مصلوب کرو. جی پڑھیے. یسوع کانٹوں کا تاج رکھے اور ارغوانی پوشاک پہنے باہر آیا. پلاطس نے ان سے کہا دیکھو یہ آدمی. جب سردار کاہن اور پیادوں نے اسے دیکھا تو چلا کر کہا مصلوب کر مصلوب. پلاطس نے ان سے کہا کہ تم بھی اسے لے جاؤ اور مصلوب کرو کیونکہ میں اس کا کچھ جرم نہیں پاتا. یہودیوں نے اب ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کیوں یہودی جڑے سن بار بار پلاطس کو ہیرودیس کو لے کے جا رہے سن, کیونکہ کسی بھی مذہبی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو جان سے مار دے. کسی بھی مذہبی عدالت کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ کسی کو جان سے مار دیں. اس لیے وہ حکومت کے پاس لے کر جا رہے تھے. جویں کہ اسی کرسچنز جڑے ہیں اسی کوئی ایک مل کے سارے پاکستان دے کرسچن ایک عدالت بنا لیے, اپنی ایک عدالت بنا لیے اور پورے پاکستان چوں 50 60 یا 70 بندے اکٹھے کر لیے اور 70 بندے اکٹھے کر کے اسی ایک اختیار دئیے کہ 70 یا 60 یا 66 بندے اے جڑا بھی فیصلہ کرن گے وہ ساڈے لئی منن دے قابل ہوئے گا. لیکن اے ساری عدالت حکومت سنا سکتی ہے نا, جج صاحب سنا سکتے ہیں. اسی لیے یہودی لوگ بھی کوشش کر رہے سن کہ آپ تے جان نہ لئیے کیونکہ انہوں کو جان لین دا اختیار نہیں سی. اس لیے وہ پلاطس کو جا رہے سن, ہیرودیس کو جا رہے سن بار بار
ताकि वो मसीह खुदावन ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ मसलूब करवा सकन। जी प्लीज पढ़िएगा। यहूदियों ने उसे जवाब दिया कि हम अहले शरीयत हैं और शरीयत के मुआफिक वो कत्ल के लायक है, क्योंकि उसने अपने आप को खुदा का बेटा बनाया। जब पिलातुस ने ये बात सुनी तो और भी डरा और फिर किला में जाकर यीशु से कहा, तू कहाँ का है? अब देखें, वो यहूदी नहीं है, वो गैर मजहब है, लेकिन उन्हें तो ये बात सुनी है ना कि अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਹੂਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਲੀਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਇਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਦੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤਾਲੀਮ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿਲਾਂਦਾ ਹੈ और पता नहीं शायद किड्डी को पाक हस्ती होएगा। जरा प्लीज तिलावत करो। मगर यीशु ने उसे जवाब ना दिया। बस पिलातुस ने उससे कहा, अब मसीह खुदावन जिस जगह पर अगर कहते कि हाँ मैं खुदा का बेटा हूँ, तो फिर पिलातुस ने भी मसीह खुदावन को की करना सी, बरी कर देना सी। मसीह खुदावन ने इस मुश्किल परेशानी तो छुट जाना सी, लेकिन मसीह खुदावन ने जानबूझकर अपने आप को पेश किया है। जी पढ़िएगा। उससे कहा, तू मुझसे बोलता नहीं, क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझको छोड़ देने का भी इख्तियार है और मसलूब करने का भी इख्तियार। यीशु ने उसे जवाब दिया, अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ इख्तियार ना होता। इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है। इस पर पिलातुस उसे छोड़ देने में कोशिश करने लगा। बात समझ रहे हैं किस हद तक कोशिश की है यहूदियों ने मसीह खुदावन को मसलूब करने की। मैं सच ऐस नुक्ते को ਤੁਹਾਡੇ सामने रखना चाह रहा हूं कि किस हद तक उन्होंने कोशिश की थी। जी बाजी पढ़िएगा। जो कोई अपने आप को बादशाह बनाता है वो कैसर का मुखालिफ है। पिलातुस ये बातें सुनकर यीशु को बाहर लाया और इस जगह जो चबूतरा और इब्रानी में वह कहलाती है तख्ते अदालत पर बैठा। ये फसह की तैयारी का दिन और 6 घंटे के करीब था। फिर उसने यहूदियों से कहा, देखो ये है तुम्हारा बादशाह, बस वो चलाए कि ले जा उसे मसलूब कर। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? सरदार काहनों ने जवाब दिया कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। अब एक बात और आपने ज़हन में रखनी, जब ये सारे वाक़यात हो रहे हैं तो यहूदी लोग पहले डिमांड करते थे रोमी हुकूमत से कि सानू साडा बादशाह दे, यानी कि कोई रोमी शख्स या कोई गैर यहूदी शख्स जो है वो हम पर हुकूमत ना करे। इसलिए रोमी हुकूमत ने हेरोदिस बादशाह ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बादशाह बना के पेश किया है। बात समझ रहे हैं? हेरोदिस को यहूदियों का बादशाह बनाकर पेश किया था कि यहूदियों को ये लगे कि इनका भी एक बाशिंदा मौजूद है। पहले रोड़ा पाते रहे ने कि सानू साडा बादशाह दे, और ਜਦੋਂ हेरोदिस ਨੂੰ बना ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ और मसीह खुदावन ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ कि ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ कि ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ सिर्फ कैसर ही बादशाह है, यानी अपनी बात से भी फिर गए। ये सारी बातें, ये सारी सियासत है। बाब 53 के मुताबिक ईसाया नबी का सहीफा 53वें बाब की 5वीं आयत के मुताबिक मसीह खुदावन ते की जा रही है, सियासत की जा रही है ताकि उन्हें की किया जाए, मसलूब किया जाए। और पिलातुस जेड़ा है जो असी इसे हवाले दी निस्बत नाल दूसरी नाजील च पढ़ने आ ते उन्हां दे विच लिखिआ है कि पिलातुस ने 3 दफा उन्हां नूं कहा है और 3 दफा पिलातुस ने कहा कि मैं इहदे च कसूर नहीं पांदा, मैं इहनूं कसूरवार नहीं ठहरांदा, इहनूं मैं मुजरिम नहीं ठहरांदा। और फिर पिलातुस जेड़ा है उन्हां नूं कहंदा कि तुहानूं पता है कि मैं ईदे फसा ते एक मुजरम जेड़ा है, एक कैदी जेड़ा है मैं छड्ड देना वा, अगर तुसी कहते हो तो मैं इहनूं छड्ड देना वा ईदे फसा दा करके, ते ओह कहंदे ने कि नहीं इहनूं नहीं छड्डना, जेड़ा बरअबा है ओनूं तो इहदी जगह ते छड्ड दे। बात समझ रहे हैं? जो बरअबा है ओनू इहदी जगह ते छड्ड दे। बरअबा भी एक डाकू सी, एक कैदी सी, ओनू डिमांड की उन्होंने कि तू इहनू छड्ड दे ते मसीह खुदावन नू की कर, मसलूब कर। और फिर पिलातुस थक हार के ब्लैकमेल होके उन्हें पता सी अगर मैं फैसला नहीं करांगा तो फिर ये मेरे खिलाफ हो जाएगी और मैं अपने ओहदे तो भी हाथ तो पवांगा। इसलिए पिलातुस मजबूरी के तहत उन्होंने कहता है कि इस शख्स का गुनाह ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗਾ,
میں ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ, मेरे हाथ जो है इसके खून से रंगे हुए ना होगे, बल्कि तुम इसके कत्ल के जिम्मेदार होगे। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉसी खुदावंद ਨੂੰ मसलूब ਕੀਤਾ ਜਾ सके। आज आपको ये सारी कहानी गतसमनी बाप से लेकर मसीह खुदावंद की सलीब तक का किस्सा मैंने आपके सामने ये रखी है। बात समझ आ रही है? कितने को समझ आई है? जरा दसो। अच्छा, इन 6 पेशियों में हमें बहुत ऐसी बातें सीखने को मिलती है। मैंने अभी बहुत डिटेल से नहीं समझाया, बहुत मैंने कोशिश की है कि मैं जल्दी जल्दी इसको लेके गुजर जाऊं ताकि आप लोग कहीं गुम ना हो जाए कि फादर साहब केड़े पासे होते हैं। लेकिन इन बातों को जानना सीखना बहुत जरूरी है कि किस तरह सिर्फ जिस्मानी तशद्दुद मसीह खुदावंद पर नहीं किया गया, बल्कि मसीह खुदावंद पर ज़हनी तौर पे भी बहुत ज्यादा दबाव डाला गया, बहुत ज्यादा मसीह खुदावंद को परेशान किया गया, मसीह खुदावंद को बदकार कहा गया, मसीह खुदावंद को कुफर बकने वाला कहा गया, मसीह खुदावंद को रोमी हुकूमत के बागी कहा गया कि बगावत कर रहे हैं, ਤੁਹਾਡੇ खिलाफ ਸਾਨੂੰ भड़कांदा है। मसीह खुदावंद के बारे में बहुत नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, मसीह खुदावंद के मुंह पर तमाचा मारा गया, मसीह खुदावंद के मुंह पर थूका गया, मसीह खुदावंद को अरगवानी चोगा पहनाकर उसे कूटा गया, उसे मारा गया, उसे सिताया गया और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे मारकर पूछा गया कि बता के तुझे कौन मारता है, नबूवत कर। अब एक शख्स जिसके पास पूरा इख्तियार है, जिहड़ा आसमान ते जमीन दा भी इख्तियार रखता है, जिसकी मर्जी के बगैर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ते ओदे खिलाफ ये सारियां गल्लां कीतियां जा रही हैं। कितनी अफसोस और कितनी शर्म दी गल है कि उन्हां लोकां ने मसीह खुदावंद नूं कबूल नहीं किया, उन्होंने मसीह खुदावंद नूं सच्चा मसीहा कबूल नहीं किया, बल्कि उन्होंने अपने मुफाद वास्ते मसीह खुदावंद नूं की कीता, मसलूब करवा दिता। अब इस बात की जरा एक्सप्लेनेशन सुन ले कि मसीह खुदावंद नूं अपने मुफाद नहीं क्यों ना मसलूब करवा दिता। मसीह खुदावंद का जब शाहाना दाखिला हुआ, हमने एक चलते चलते पिछले इतवार में बात की थी कि जब शाहाना दाखिले पर लोगों ने मसीह खुदावंद का इस्तकबाल किया है, तो उसके फौरन बाद का ये वाकया है कि मसीह खुदावंद हैकल में जाते हैं और हैकल से जाके की करते रहे, सफाई का काम। यानी सफाई से मुराद कि उन लोगों को जो वहां पर उस जगह पर जहां पर गैर अक़वाम के दुआ करने की जगह थी, उस जगह को रोक कर उस जगह पर वो क्या कर रहे थे कि अपने उन्होंने अड्डे लगाए थे, उन्होंने कबूतर बेचना शुरू किए, सब्जियां और बहुत सारी ऐसी चीजें, यानी कि मंडी लगाई हुई थी। लेकिन वो हैकल की वो जगह मखसूस थी गैर अक़वाम के आकर दुआ करने के लिए, क्योंकि गैर अक़वाम हैकल में दाखिल नहीं हो सकती। जिस तरह के जेड़े ने यहूदी लोग ने पिलातुस दी किले से दाखिल नहीं हुए, इसी तरह गैर अक़वामी हैकल से दाखिल नहीं सी हो सकती। लेकिन इस तरह पार्टीशन की सी, एक हिस्सा गैर अक़वामी हुंदा सी ताकि वो आके उत्थे की कर सकण, दुआ कर सकण। लेकिन उस हिस्से नूं वो गैर अक़वाम नूं देंदे नहीं सन, उस हिस्से नूं उन्होंने बुक कीता होया सी, उत्थे मंडी ला दित्ती होई सी। मसीह खुदावंद ने यरूशलेम च आके हैकल दी सफाई की, यानी उन्हां दे उस मंडी नूं तहस नहस कर दिता और चुक दिता। और मसीह खुदावंद ने कहा कि तुसी मेरे बाप दे घर नूं की कीता है, डाकुआं दी खोह बना दिता है। इस गल तो उन्हां नूं बहुत तकलीफ सी कि इहने आके साडा कारोबार तबाह कर दिता है, और उस कारोबार की तबाही की वजह तो मसीह खुदावंद नूं फड़वाउण दी कोशिश करन लग पे, मसीह खुदावंद नूं मरवाउण दी वो कोशिश करन लग पे। बहुत मौके लभदे रहे ताकि उन्हें फड़न और उन्हें कत्ल करन, लेकिन उन्होंने कोई मौका भी नजर नहीं आया। और 6वीं पेशी के तहत असां ये सीखिया है कि आखिर तक भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इल्जाम मसीह खुदावंद ते साबित नहीं होया। वो बेकसूर सी, लेकिन फिर भी उहदे ते इल्जाम लांदे रहे। वो गुनहगार नहीं सी, फिर भी उन्हें गुनहगार बनाने की कोशिश की गई, उनको कसूरवार बनाने की कोशिश की गई। और ये सारी सियासत किधर ही हुई? मेरे पे। मसीह खुदावंद ने अपनी मर्जी ना अपने आप को पेश कर दिता कि लोग मेरे पे सियासत करो। और बाइबल मुकद्दस दियां पुराने अहदनामे दी सारी नबूवतां इस वसीले दे नाल पूरीआं हो सकन ताकि मैं कुर्बान कीता जावां। वो ज़ाहिरी तौर पे
ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਲੂਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਨਜਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਕ ਬਰਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਖਲਾਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਇਹ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ, ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੋ। ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਫਾਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸਨ, लेकिन मसीह खुदावंद ने ताड़े पे मेरे लिए आपको सियासत भी करवाई, दुख भी सहे, परेशानी भी सही, जिस्मानी तशद्दुद भी करवाया। मसीह खुदावंद को बुरा भला भी किया गया, इल्जामात भी लगे, लेकिन मसीह खुदावंद ने सब कुछ ताड़े पे मेरे लिए बर्दाश्त किया। खुदा करे कि ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ, ਜਾਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਨਜਾਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਨਜਾਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਨਜਾਤ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਵੇ, ताकि वो साढ़े लिए दुख बर्दाश्त करे, ताकि तुसी ते मैं परेशान ना होइए, बल्कि नजात का लुत्फ ले सकिए, हमेशा की जिंदगी का लुत्फ ले सकिए। आइए अपने सर झुकाइए। कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद उसने प्याला भी लिया और अपने शागिर्दों को देकर कहा, ये नए अहद का मेरा खून है जो तुम्हारे और बहुतों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। हम सब मिलकर कहें, ऐ खुदावंद, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरी मौत को याद करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरे जी उठने का इकरार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं, हम तेरी दूसरी आमद का इंतजार करते हैं। ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो, ऐ मसीह तेरा ही जलाल हो। आमीन आमीन। हेलो भाइयों, उम्मीद है आपने आखिर तक मेरी इस वीडियो को देखा होगा। आज की सच में बहुत अच्छी वीडियो बनी है। आपको अच्छी लगे ना लगे, जो आज का मैसेज था, जो आज का भाई साहब का सरमन था, पाक शराकत, आखिरी फसा की इबादत बहुत अच्छी थी। तो आज का जो सरमन है मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा है, उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे बंद कर रहा हूँ ताकि आपके लिए एडिटिंग भी कर सकूँ। ये देखिए, आपके लिए मैंने लैपटॉप को भी ऑन कर दिया है। अभी मैं इस पर थोड़ी सी एडिटिंग करूँगा ताकि आपको ये वीडियो मिल सके, आप भी ये नॉलेज, ये कलाम की बातें सीख सकें। तो और इसके अलावा सुबह जुम्मल मुबारक है, उसकी इबादत भी है। तो खुदावंद यसुम मसीह के अलाही 7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा आपके भाई को भी बोलने को मिला है। दूसरा कलमा, नजात का कलमा, आपका भाई सुबह बोलेगा, वो भी आने वाले व्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। कि थैंक यू सो मच, आखिर तक आपने मेरी इस वीडियो को देखा है। आज का ये व्लॉग तो नहीं था, सच्ची आज का ये व्लॉग तो नहीं था, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है, सच्ची बहुत कुछ सीखा है आज मैं। तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में, न्यू व्लॉग में, न्यू नॉलेजेबल वीडियो में, न्यू अपना जो कलमा मैंने बोलना है, खुदावंद यसुम मसीह के 7 सलीबी कलमात में से दूसरा कलमा आपके भाई का है। तो ये सुबह फिर मैं बोलूँगा, तो वो भी आने वाले, मतलब मैं एक दिन में वीडियो शूट करता हूँ, अगले दिन वो पब्लिश हो जाएगी। रात टाइम एडिटिंग करनी होती है, तो अगले दिन वो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी वो भी वीडियो आपको मिल जाए। तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। तो आज वैसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। तो ओके, बाय।